Hello everyone. Today we'll learn a new topic. So before we start with the new topic, I'd like to revise some books that we had learned in the previous lecture. Okay. So those were the books of accounts. So what are the books of accounts? So first one is journal and subsidiary books, which we have learned primary books. Okay. So in that what is included? Journal is included. And other books are included. Okay. And then there are secondary books. Okay, which are also called as final books. So today we learn about ledger. Okay, so ledger is a part of the final books because after that we start preparing our final accounts. What are final accounts that we prepare at the end of the year, at the end of the financial year? Okay, so now journal we have learned. Okay, journal is basically your day-to-day transactions are recorded in this journal book. Okay, and at the end of the year, what you do is those all the transactions are there. You have to summarize this, and you have to write it, record it in the ledger book. Okay, so after completing the ledger book, you have to find the balances. Okay, so suppose in the beginning I had put 10,000 in the account. Okay, suppose I'm depositing 10,000 in my account, but by the end of the year in my account only 7,000 are left. Okay, so that 7,000 will be the balance. Okay, so that 7,000 will be recorded in the trial balance, and then I will prepare my final accounts. Okay, so we use ledgers to calculate our balance. Okay, so what are ledgers? First of all, ledger is a principal book of account. Okay, now journal was also called a principal book of account. Okay, ledger is also called a principal book of account. Why? Because it is the primary book, not primary, but it's like without a journal and without ledger you cannot prepare your final account. So it is the basic one, so that's why it is called as principal book of accounts, and it is also known as book of final entry. Okay, so final entry is done here, then whatever balances you calculate, that will be transferred in the trial balance, and then you will prepare your final accounts. So that's the final book, final entry. Now what is done? You summarize the record, okay, and it contains all accounts. So journal may you record each day ka transaction. Okay, so today I received 10,000 rupees. Okay, tomorrow I pay rupees 2,000 to Mr. X. So both the transactions will be recorded date wise in the journal book. But then ledger may this all the transactions all together will be written in one account. Okay, that will be preparing, that I will show you by the end of the video. Okay, so what types of accounts are recorded? Asset accounts, that is machinery account, furniture account, land and building account. Okay, liabilities account, that is creditors account, bank overdraft, or any loan that you have taken. Okay, capital account, that is for collecting capital. What you do? You issue equity share, you issue uh, preference shares, then you issue debentures. Okay, bonds are also there in case of government. So these are the capital accounts. Then revenue account, that is what you receive. Okay, so if I receive commission, the commission will be my revenue account. Expenses may I give discounts to my customers. Okay, I pay rent or electricity bill, that is my expenses account. So all the types of accounts are recorded in this ledger account, a ledger book. Okay, so now the word ledger was derived from a Latin word which is ledger. Okay, so uh, this is basically a Latin word which means to contain. Now why we have taken this word? It is because it collects all the types of accounts. What type of accounts? Asset account, liability account, capital account, revenue account, and expenses account. Okay, so this was the introduction. Okay, what is a ledger? Now we'll see why is it required. So this is called as significance of ledger accounts or importance of ledger accounts. Okay, so it's a summarized record. So summarize means in short you get the details. Okay, so agar you have to see all the
transactions which are which occurred in the entire year. तो journal book में कैसे करेंगे, you have to read each and every transaction. But इधर कैसे डायरेक्टली आप लोग ने अगर बैलेंस भी देखा तो भी आप लोग को समझ में आएगा कि ओके अकाउंट में मेरे अकाउंट में 10,000 बाकी है, आई कैन स्पेंड दैट 10,000, या फिर मेरे अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस हो गया. ओके, सो दैट समराइज रिकॉर्ड यू गेट. The ultimate objective is to ascertain the ascertain with the least trouble. Okay, least trouble मतलब आप लोग को कोई परेशानी नहीं होगी. Okay, थोड़ा बहुत addition subtraction you have to do and then you're done. Okay, तो उसमें क्या पता चलेगा, you have to find out how much you owe to the supplier. मतलब आप लोग को supplier को कितना पैसा देना है. Okay, who are the suppliers जिनके पास से आप लोग रॉ मटेरियल्स लेते हो, दोज आर द सप्लायर्स. अभी उनको आप लोग को कुछ पैसे देने हैं, सो यू विल गेट टू नो हाउ मच यू हैव टू पे. ओके, या फिर कस्टमर्स के पास से कितना आना है, दैट आल्सो यू विल गेट टू नो, एंड एक्सेट्रा ऑल द हाउ मच इंटरेस्ट यू हैव टू पे टू द बैंक. ओके, अगर लोन लिया है तो बैंक को भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, सो दैट आल्सो यू विल गेट टू नो. ओके, सो ऑल द डिटेल्स, स्मॉल डिटेल्स दैट यू विल गेट टू नो फ्रॉम द लेजर. जर्नल में आप लोग को हर एक एंट्री एक बार पढ़ना पड़ेगा एंड देन फिर से टोटल करो, बट इधर एवरीथिंग इज डन ऑलरेडी. एक फाइनल टोटल मारनी रहती है बस. ओके, देन इट इज नेसेसरी टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस. नाउ एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि जर्नल के बिना लेजर नहीं हो सकता है, लेजर के बिना ट्रायल बैलेंस नहीं हो सकता है, और अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो आप लोग को फाइनल अकाउंट जो होता है दैट विल नॉट बी एबल टू प्रिपेयर. ओके, so it helps you to find out the financial position of the business. Financial position यानी क्या, the financial position मतलब जो भी business अभी grow कर रहा है, how much is it growing, और या नीचे गिर रहा है. okay, that will get to know. या फिर last year जितना profit हुआ था more or less उतना ही profit हुआ है, everything will get to know from this ledger. okay, then various types of income statements you are able to prepare. okay, there are different types of income statements. okay, वो भी आप लोग को हेल्प करेगा, इसमें से आप लोग बना पाएंगे easily. okay, then it is a control tool. अभी control tool मतलब क्या है, इतने सारे expenses होते हैं, you have to pay electricity bill, you have to pay interest to the bank. okay, अगर लोन लिया रहेगा तो रेंट पे करना रहता है, other expenses that you pay, ट्रांसपोर्टेशन रहता है. आप लोग अगर रॉ मटेरियल खरीद रहे हो तो उधर से ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उनके ऑफिस वेयर हाउस में से अपने वेयर हाउस में लाना पड़ता है. सो ऑल दोस ट्रांजैक्शंस आर देयर, उतने एक्सपेंसेस रहते हैं आप लोग के. तो आप लोग अपने एक्सपेंसेस यू कैन कंट्रोल देयर. ओके, अगर मुझे पता चल रहा है कि अरे मेरा 10,000 खर्चा हो रहा है, बट आई कैन रिड्यूस दिस 10,000 to 9,000, सो आई गेट टू नो दिस फ्रॉम माई लेजर अकाउंट. ओके, लेजर बुक में मैं जो भी रिकॉर्ड करूंगी ट्रांजैक्शन समराइज्ड वाला, उसमें से I'll be able to predict it. अभी prediction पे से what you are going to remember is it helps you to forecast or plan future actions. अभी forecast मतलब क्या है, अगर in future if you are going to face some crisis, okay, समझो आप लोग के पास पैसे कम पड़ रहे हैं, तो आप लोग को पता चलना चाहिए ना कि पैसे का इंतजाम कैसे करना है फिर से. तो you will be able to forecast that. okay, you will be able to plan your future actions. okay, तो अगर समझो मेरे पास पैसा कम पड़ रहा है, ओके, सो आई विल बी टेकिंग सम लोन्स. ओके, बैंक के पास से लूंगी, या फिर मेरा कोई दोस्त होगा, या फिर किसी के पास से भी आई विल टेक अ लोन, या फिर मैं मेरे खर्चे कम करूंगी. एवरीथिंग आई विल बी एबल टू प्लान. क्यों? बिकॉज ऑफ माई लेजर अकाउंट. ओके, जो लेजर बुक में मैं ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगी दोज आर समराइज्ड. ओके, डे टू डे होता है, उधर डेट वगैरह लिखा रहता है, बट स्टिल नो एक साइड पे आप लोग को मिलेगा. अगर समझो बैंक अकाउंट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट में यू विल सी हाउ मच यू हैव टू पे. ओके, हम क्रेडिट में यू विल गेट टू नो हाउ मच यू हैव रिसीव्ड. ओके, सब आप लोग को पता चलेगा. तो बाद में आप लोग को बैलेंस में उधर दिखेगा कि यार मेरे पास 10,000 बाकी है. ओके, सॉरी 7,000 बाकी है. ओके, आई टोल्ड यू ऑल दैट आई हैड डिपॉजिटेड 10,000, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड. ओके, जो भी मैंने विड्रॉ किया है बाद में 3,000 वो भी रिकॉर्ड होगा, एंड देन फाइनल मेरे पास आएगा जो टोटल आएगा वो 7,000 रहेगा. तो ओके, मेरे पास 7,000 बाकी है, तो वो सब साथ में रहेगा ना.
जब भी जर्नल में होगा तो भी डेट वाइज उल्टा पुल्टा किधर भी कुछ भी रहेगा। ओके, सो आप लोग को पूरा बुक ऐसा ना स्कैन करना पड़ेगा। सो लेजर इज बेसिकली द इजिएस्ट वे टू फाइंड आउट योर बैलेंसेस। नाउ अभी लेजर लेजर कब से चल रहा है, बट आप लोग को अगर लेजर बनाना ही नहीं आता है तो आप लोग कैसे करोगे फिर? सो फॉर दैट विल बी लर्निंग द स्पेसिमेन। स्पेसिमेन यानी वी आर लर्न द प्रोफॉर्मा जर्नल का सेम थिंग बट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ओके, अभी इधर इन द बुक्स ऑफ डैश। ओके, तो समझो मेरी कंपनी है कोई, तो मेरी कंपनी का नाम लिखूंगी मैं इधर डैश में। ओके, नेम ऑफ द अकाउंट, अभी बैंक अकाउंट ही ले लेते हैं हम लोग। सो इधर बैंक अकाउंट लिखूंगी मैं, और फिर इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। ओके, यू हैव टू रिमेम्बर द रूल्स ऑफ द पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ओके, इधर क्या करोगे आप लोग, अभी जो आपका पेज रहता है ना, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। ओके, जो लेफ्ट साइड रहेगा उधर आप लोग का डेबिट साइड आएगा, और जो राइट साइड रहेगा उधर आप लोग का क्रेडिट साइड आएगा। ओके, तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों साइड पे सेम कॉलम रहेगा। ओके, फर्स्ट कॉलम इज डेट। डेट मतलब जिस दिन आप लोग का ट्रांजैक्शन हुआ है। ओके, सपोज आई डिपॉजिट माई 10,000, आज अभी तारीख क्या है, 12 अक्टूबर है। ओके, सो आई राइट द डेट ईयर मंथ डेट फॉर्म में। सो अभी 2025 का ईयर चल रहा है, सो 2025 मंथ यानी कि 10 लिखेंगे हम लोग, अक्टूबर ऐसा पूरा नहीं लिखेंगे, 10 और डेट मतलब 12। ओके, पर्टिकुलर्स में लिखूंगी मैं टू कैश। ओके, अभी मैंने कैश डिपॉजिट किया ना बैंक में, सो टू कैश में इधर लिखूंगे 10,000। ओके, जेफ यानी कि जर्नल फोलियो। अभी जर्नल में जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी एलएफ लिखा था। ओके, दैट वाज लेजर फोलियो। लेजर फोलियो मतलब लेजर में कौन से पेज नंबर में है ना, दैट विल बी राइटिंग इन द जर्नल। ओके, अभी इधर लेजर में जर्नल फोलियो बोलेंगे तभी आप लोग को जर्नल में कौन से पेज पे वो ट्रांजैक्शन है दैट विल बी राइटिंग। ओके, सो इधर आप लोग का एक साइड खत्म हो जाता है, फिर दिस इज द मिडल पार्ट। ओके, जिधर आप लोग का पेज का फोल्ड रहेगा ना दैट, ओके, उसके वो साइड पे लेफ्ट साइड पे अगेन सेम कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, रुपीस। ओके, अभी बाद में जब भी आप लोग का ईयर खत्म हो जाता है, ओके, व्हेन यू हैव टू क्लोज द बुक्स। ओके, क्लोज मतलब इसका टोटलिंग वगैरह करके पूरा बैलेंस फाइंड आउट करके रखना होता है। सो तभी क्या करेंगे, इधर रुपीस में जो भी अमाउंट लिखे हैं सारे दैट यू आर गोइंग टू एड अप। ओके, क्रेडिट में जो भी अमाउंट लिखा है वो ऐड करना है, दोनों में डिफरेंस कितना है ना दैट विल बी राइट। ओके, अभी इधर अगर समझो 7,000 है, इधर 10,000 है, सो हाउ मच इज द डिफरेंस? 3,000 का। अभी कम किधर पड़ रहा है? डेबिट में कम पड़ रहा है, सो डेबिट में यू विल राइट टू बैलेंस कैरीड डाउन, सॉरी हाँ, टू बैलेंस कैरीड डाउन। ओके, या फिर वाइस वर्सा हो सकता है, डेबिट में आप लोग का टोटल ज्यादा आ सकता है, क्रेडिट में कम आ सकता है। सो उधर जब भी कम आ जाएगा तभी उधर लिख लेगा। ओके, वेरेवर द बैलेंस इज लोअर नो, उधर आप लोग को लिखना है कि टू बैलेंस कैरीड डाउन। ओके, और फिर पूरा टोटल लिखना है, दैट इज अभी लार्जर टोटल क्या है? 10,000, सो 10,000 विल बी राइटिंग। ओके, और फिर जब भी नेक्स्ट ईयर का जब भी बुक खोलेंगे आप लोग, ओके, तभी दैट बैलेंस 3,000 का बैलेंस आया था, दैट सॉरी 7,000 का बैलेंस आया था, दैट 7,000 यू विल बी राइटिंग इन द अपोजिट साइड। मतलब अभी समझो डेबिट में आप लोग ने लिखा था टू बैलेंस कैरीड डाउन, तो न्यू बुक में जब भी नया ईयर का बुक खोलेंगे तभी क्रेडिट में आप लोग को लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, और अगर क्रेडिट में कम आया रहेगा तो इधर आप लोग ने लिखा था बाय बैलेंस कैरीड डाउन, नेक्स्ट ईयर में डेबिट में लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, वो आप लोग को जब भी सम्स वगैरह सॉल्व करेंगे ना तभी पता चल जाएगा। अभी फिलहाल इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।